And poem number 9, The Solitary Reaper by Wordsworth. And solitary means lonely, alone, akela. Reaper is फसल काटने वाला या काटने वाली. And in this poem, this is a girl, so फसल काटने वाली. Behold her, single in the field. Behold means to look at her, see, watch her, single in the field. She's single, she's lonely, she's alone, she's lonely, nobody else is there. She's in the field. Field is, you can say, farm area. And yon solitary highland, yes, yon young, solitary, alone, lonely, highland, पहाड़ी इलाके की, या you can say of hilly area, it's a mountainous area. Lass is young girl, so she is a young girl who is single in the field. She is reaping the crops, and reaping and singing by herself. Reaping is फसल को काटना, and she's singing a song, और अकेले ही गा रही है, खुद ही से गा रही है गाना. Stop here or gently pass. And the poet is saying that either you should stop here, or you should if you are passing, you should pass gently so that you may not disturb her. Do not disturb her song and her action. Alone she cuts and binds the grain. So she's there alone in the field, and she is cutting the grain, and she is binding, making bundles बना के उसको bind भी कर रही है, उसको बांध भी रही है. And sings a melancholy strain, and she's singing a song as well. She is doing her work, and she's singing a song, melancholy, and sings a melancholy strain. And the song that she is singing has got a melancholy strain. Melancholy is, you can say, a sad, sorrowful sign in it, a sad streak in it. Strain is a streak, touch, a touch of sorrow, a touch of sadness is there in that song. और एक क्योंकि because Wordsworth wrote this poem when he was on a tour to Scotland. He was visiting Scotland, and this particular mountainous area is in Scotland, and this girl is a Scottish girl who is cutting and reaping the crops, who is cutting the crops and binding them, and therefore he cannot understand her song. He says he can just understand that this song has got a melancholy strain. उसको आवाज़, उसको ये लैंग्वेज नहीं समझ आ रही कि वो क्या गा रही है. उसको बस इतना समझ आ रहा है कि that the song has got a melancholy. melancholy कहते हैं उदासी का, गम का, उसमें टच है. और listen for the veil profound, and listen for the wadi जो है deep, veil is wadi, valley, profound is deep, is overflowing with this sound. Overflowing is full of, it's filled with, it's you can say overflowing, it's overpowered with the sound. और सारी वादी जो है वो इट्स ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. वादी में ये आवाज़ जो है सॉन्ग की गूंज भी रही है, आवाज़ उसी की ही सुनाई दे रही है. No nightingale did ever chaunt more weary bands to more varied notes to weary bands. And now he's comparing the song of the girl to that of a nightingale, और he's saying कि किसी nightingale ने भी इतने खूबसूरत नगमे did ever chaunt. Chaunt is to sing more welcome notes to weary bands. किसी nightingale ने भी इतने खूबसूरत नगमे नहीं सुनाए होंगे थके हुए bands कहते हैं groups of travelers in some shady haunt among Arabian sands. थके हुए काफ़ले, bands मुसाफिरों के काफ़ले जो रुके होते हैं ये shades के नीचे, in some shady haunt among Arabian sands. सो सायादार जगहों के नीचे जो बार बार आके रुकते हैं. हॉन्ट इज़ टू विज़िट फ्रीक्वेंटली. हॉन्ट मीन्स टू स्केयर, एक तो वो भी है मीनिंग, लेकिन हॉन्ट मीन्स टू विज़िट फ्रीक्वेंटली. सो जो मुसाफिर बार बार सायादार जगहों पे रुकते हैं साए के नीचे अरेबियन सैंड्स में, अरब के सहराओं में, उनको भी इतने खूबसूरत नगमे किसी नाइटिंगेल ने नहीं सुनाए होंगे. So the voice of the girl has been compared to that of a bird, the nightingale. And second comparison,
A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silences of the seas among the farthest Hebrides. So he's saying a voice so thrilling, itni खूबसूरत आवाज, a voice so thrilling is exciting. You can say a voice so you can say arousing and exciting and thrilling, thrill create करने वाली was never heard in springtime from the cuckoo bird. एक और bird से अब वो compare कर रहा है. First he compares the voice of the girl to that of a nightingale. Now he's comparing with another bird, the cuckoo bird, कि उसने भी इतने खूबसूरत नगमे नहीं गाए होंगे बाहर के मौसम में खामोशी तोड़ते हुए समंदरों की दूर दराज जजीरों में, फारदेस्ट हीब्राइड्स, दूर दराज जजीरों में भी कुकू बर्ड ने इस तरह के नगमे नहीं सुनाए होंगे. And here we can see there is comparison over here. You can call it a metaphor. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things and battles long ago. So he's saying कि क्या कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है. और परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, परहैप्स वो दूर दराज कभी पुराने ज़माने के किसी मैटर, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कुछ गा रही है. फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, कोई पुरानी नाखुशगवार किसी वाक़े के बारे में. एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, परहैप्स जो बहुत दूर पहले कभी जंगें हुआ करती थी उनके बारे में गा रही है. और इज़ इट मोर हम्बली फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर इट्स अ मोर हम्बल कहते हैं कि कोई आजिज़ाना कोई मामला है आजकल का ही जिसके बारे में वो गा रही है. इट्स अ फेमिलियर मैटर, आजकल के ही. इट्स सम नेचुरल सॉरो और लॉस और पेन, किसी गम की कोई वजह है उसकी, या कोई गम की बात है जिसके ऊपर वो गा रही है, किसी कोई उसका लॉस है, पेन जो हुआ है, और that is going to happen again, that has and maybe again. Whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. So he's saying कि जो भी थीम है मेरिन के सॉन्ग की, जिसके बारे में वो गा रही थी, और ऐसे गा रही थी जैसे उसकी कोई एंडिंग नहीं होगी, और शी इज़ सिंगिंग अ कंटिन्यूस सॉन्ग. आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग. अपने जो सिकल कहते हैं वो जो उसका आला है जिससे वो घास काट रही है, इट्स अ लॉन्ग पॉइंटेड क्या लेके, इट्स अ थिंग फॉर कटिंग ग्रास, टूल होता है. So and then I listened motionless and still, or he's listening motionless without moving and still. And as he's mounting up the hill, as I mounted up the hill, जैसे पहाड़ी पे चढ़ने लगा, I am carrying the music in my heart. The poet says that the music in my heart I bore, I recorded it, I bore it, I, you can say I saved it. The music in my heart I bore, it's saved in my heart, it's saved in my memory. It's something which I have you can say I have gathered it in my memory and heart long after it was heard no more. So that music is saved in my heart for you can say for the purpose of recollecting it later, uh, long after it was heard no more. बाद में नहीं भी सुनाई दे रहा था तो उस सॉन्ग की मेमोरी वो अपने साथ लेके आगे तक गया है. ही मीन्स टू से कि वो जब वो म्यूज़िक नहीं भी सुनाई दे रहा तो वो उसको उसने सेव कर लिया है अपनी मेमोरी में, और जब वो नहीं भी सुनाई दे रहा तो वो सॉन्ग को रिकॉल करेगा इन ऑर्डर टू हैव सम प्लेजर, इन ऑर्डर टू हैव सम एन्जॉयमेंट. Sorry, this is not a metaphor, correction, this is a simile. You can say like as नहीं यूज़ हुआ. मेटाफर की डेफिनेशन और तरह की है, वो मैं आपको भी बताती हूँ. दिस इज़ अ सिमिली जिसमें कंपैरिजन किया है इसने आवाज़, ये सॉलिटरी रीपर की जो सिंग कर रही है सॉन्ग, उसको कंपेयर किया है पहले नाइटिंगेल से, एंड देन ही हैज़ कंपेयर्ड हर वॉइस विद अ कुकू बर्ड. सो लेट्स कम टू द फिगर्स ऑफ स्पीच दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम.
फिगर्स ऑफ स्पीच में एज आई सेड कि सिमिली यूज़ हुई है, जहाँ कंपेयर किया है वॉइस ऑफ द गर्ल विद दैट ऑफ अ नाइटिंगेल एंड ऑफ अ कुकू बर्ड। हाइपरबोल कहते हैं एग्जेजुरेशन यूज़ की है उसने फॉर द पर्पस ऑफ एम्फेसिस। तो वो जहाँ पे बात कर रहा है ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, ब्रेकिंग द साइलेंसेज ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट ही ब्राइड्स। और कुकू की आवाज़ जब साहिल के समंदर पे गूंजती है और दूर दराज इलाकों जज़ीरों में की खामोशी जो है उसको तोड़ती है। सो यहाँ पे उसने थोड़ी सी एग्जेजरेशन यूज़ की है, एग्जेजरेशन एम्फेसिस देने के लिए कि आवाज़ जो है ये सॉलिटरी रीपर की, अकेले जो फसल काट रही है इसकी बहुत गूंज रही है और ओवर पावरिंग हो रही है। उसको एम्फसाइज करने के लिए जैसे वादी में उसकी आवाज़ जिस तरह गूंज रही है उसको कुकू से कंपेयर करके ये मज़ीद ये एग्जेजरेशन जो शो की है एक्चुअली एम्फसाइज करने के लिए की है कि इसी तरह से उसकी आवाज़ भी वादी में गूंज रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी कुकू की आवाज़ गूंजे साहिल समंदर के करीब और दूर दराज जज़ीरों में खामोशी को तोड़ती। सो मेटाफर यूज़ किया है। मेटाफर कहते हैं कि दो बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान आप खींच के किसी तरह से सिमिलैरिटी ले आएँ, अपेरेंटली टू डिफरेंट थिंग्स हों। सो दिस इज़ दो डिफरेंट चीज़ें जैसे पोएम रेन में है रिच लीव्स एंड रिच पीपल, वो फर्स्ट ईयर में है कि रिच पीपल्स अपेरेंटली बहुत डिफरेंट, रिच पीपल और रिच लीव्स दो दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह से पोइट सिमिलैरिटी लेके आया है उस तरह से वी बिकम कन्विंस्ड कि इसमें ये आपस में इनके सिमिलैरिटी है। सो देखा जाए तो ये नाइटिंगेल से कंपैरिजन या कुकू बर्ड से कंपैरिजन इट्स मोर ऑफ अ सिमिली रादर देन अ मेटाफर। सो मेटाफर एज सच नहीं है, ये एक सिमिली है। इमेजरी यूज़ ऑफ वर्ड्स यू कहीं करना जिसको आपके सेंस ऑफ टेस्ट स्मेल आपके सेंसेस को अपील करे। सो इसमें कैन से ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं जो सेंस ऑफ साइट को अपील कर रहे हैं और आपके थॉट्स, इमेजिनेटिव यूज़ ज़्यादा है वर्ड्स का इसमें। वैसे राइमिंग वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं जहाँ पे पेन अगेन यूज़ हुआ है, हिल स्टिल यूज़ हुआ है, ले टुडे है, एंड ending, bending, bore, more. So these are there is the use of rhyming words, and alliteration is जो consonant sounds की repetition है, कह सकते हैं नो नाइटिंगेल जैसे लिखा है यहाँ, नो नाइटिंगेल, और वेलकम नोट्स टू वेरी, डब्ल्यू डब्ल्यू के जो साउंड रिपीट हो रहा है, नो नो एन का साउंड रिपीट हो रहा है. सो दीज आर देयर इज alliteration over here. You can note some other questions. What is the central idea of the poem The Solitary Reaper? What are the poet's feelings as he listens to the song? The poem is rich in visual imagery. Figures of speech हो गया, और जो book की back का question है, that is important कि उसने एक ordinary experience of life जो है, he has turned this common experience of life into something beautiful, और आर्टिस्टिक मेरिट्स उसके फाइंड आउट करें, यानी फिगर्स ऑफ स्पीच आप उसकी थीम, लैंग्वेज, राइम, मेटाफर्स, सिमिलीज जो भी उसने यूज़ किए हैं उनको उनको उनके बारे में आप बात करते हुए इसका बताएं। और उसने किस तरह से इसमें, बिकॉज ही इज़ नोन एज अ रोमांटिक पोइट, अ रोमांटिक पोइट मीन्स अ पोइट विद अ चेंज, तो उसने एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री लेके आया है। रोमांटिसिज्म में ये होता था कि एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री लेके आ रहे हैं, फार ऑफ चीज़ों का रेफरेंस दे रहे हैं, नेचर को भी बीच में इन्वोक कर रहे हैं, नेचर को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ रोमांटिक पोइट्री. Nature is invoked, nature is given importance, mysterious element is created, and far off reference to far off things is given, and also there is a spiritual and profound connection with nature.